नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। स्वच्छ भारत मिशन के इस खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन को आगे बढ़ाते हुए देशवासियों को शपथ दिलाई। वो शपथ थी स्वच्छता की शपथ, अपने देश को कभी न गंदा करने की शपथ। इस मिशन को राज्यों ने भी हाथों हाथ लिया। उत्तर पूर्व का राज्य सिक्किम देश का सबसे पहला स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। पूरा राज्य खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया। कारवां आगे बढ़ता ही गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक को देश का सबसे पहला स्वच्छ पर्यटक स्थल के रूप में नवाजा गया है। बर्फ से ढकी कंचनजंगा की पर्वतमालाओं को निहारने दूर दूर से सैलानी सिक्किम घूमने आते हैं। पर्वतीय वादियों की गोद में बसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ट्रैकिंग का अपना ही मजा है। इसलिए साल भर यहाँ विदेशी पर्यटकों का तांता लगा ही रहता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कचरा शून्य यानी जीरो वेस्ट लैंड है। इसे साफ बनाए रखने के लिए काजीरंगा कंजर्वेशन कमेटी नाम का गैर सरकारी संगठन कई स्तर पर काम कर रहा है। सबसे पहले यहां आने वाले सैलानियों के सामान को चेक किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जाते वक्त वो ट्रैकिंग स्थल को नुकसान पहुंचाने वाला सामान साथ ही लेकर जाएं। I think this initiation is very useful and we like the idea much. Yeah, we are coming from Czech Republic. And this is a small country in Central Europe, and we are not here for the first time in India. We like it so much, so we came back. This will be our 5 days trek. We are looking for the trek, and we appreciate this try and this work, this useful work. One of the things that has impressed me about the preservation of the natural environment here is how well waste is managed. Unlike many other locations, the grounds are pristine. There are no garbage on the streets. In the forests, everything is kept very clean. The people are very ecologically minded. Garbage is collected regularly and brought to proper distribution centers. Segregation of garbage and recycling, elimination of plastic bags. All of these are excellent programs that are being piloted here in Sikkim, and I think the rest of India could benefit mighty by learning the lessons here. The results that we see here are very impressive. We just finished a 7-day trek to Guchila in Sikkim, and now we're back in Yuksam. What I'm really impressed about here is the beauty of the environment, the flora, the fauna, the mountain views. It's just absolutely gorgeous, and I think it's wonderful that the people of Sikkim have placed such an importance on environmental preservation and conservation. I think this is really the future of Sikkim, and it's very important to preserve the beauty of this place. काजीरंगा से इकट्ठा किया गया कचरा यहाँ लगाए गए कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। यहाँ से इसे पुनः प्रयोग में लाने लायक बनाने के लिए बाहर ले जाया जाता है। स्वच्छता का ये सफर काफी पहले शुरू हुआ था। ये तमाम कोशिशें सिर्फ इसलिए हैं ताकि विश्व प्रसिद्ध इस ट्रैकिंग क्षेत्र को गंदगी से दूर रखा जा सके। Trekking tourism in the Kanchenjunga National Park started in 1982, and since then there was various issues of negative impact arising out of tourism, and one of the major issue was accumulation of the garbage inside the national park. That is accumulation of garbage along the trekking trail, accumulation of garbage at the campsite, at the launch spot, and this was one of the major issues. Looking at these challenges, KCC or Kanchenjunga Conservation Committee organized the first trekking trail cleaning up campaign in 1997.
and we involve various stakeholders like teachers, student, tourism support staff. Sometimes there were also people from outside who came here to clean our mountain, and we were quite ashamed that somebody from outside is coming here to clean our mountain. Then we decided that there has to be some mechanism whereby the generation of the garbage problem inside the national park should be completely sustainable. And we sat together and we decided to come up with this zero waste initiative, whereby we decided that the waste which is taken inside the national park will be brought back by the travel company or the guides, and which will be again segregated, reused and recycled. पर्यटक और दर्शनीय स्थलों के बीच कड़ी का काम करते हैं गाइड। इसलिए यहां गाइड को भी वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए तमाम तरह की जानकारियां दी गई हैं, क्योंकि उनकी सतर्कता से ही इको टूरिज्म बच सकता है। कचरे को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने के लिए यहां लाया गया है। यहां इस कचरे को छांटकर अलग अलग किया जा रहा है। सिक्किम में कई गैर सरकारी संगठन आगे आए हैं जो इस कचरे को रिसाइकल कर आम जरूरतों का सामान तैयार कर रहे हैं। इसलिए न सिर्फ कमजोर आय वर्ग के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि आजीविका कमाने का विकल्प भी दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत के राह में सिक्किम लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसी सिलसिले में पश्चिमी सिक्किम को स्वच्छ भारत ग्रामीण की सफलता के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। The Swachh Bharat Mission Gramin has been successfully implemented in all the 55 Gram Panchayat units of West Sikkim. The concerted efforts of the district administration, state government, panchayats, NGOs and the local public have made us achieve the milestone whereby 31st December 2015 the entire district has been declared as an open defecation free district, and every household has been provided with a functional sanitary IHHL. This is an achievement. It is the community participation which has helped us arrive at this milestone, and people have come forward to accept this scheme as one of their own. So we attribute this success to the wholehearted participation of all and the diligent hard work of the officials involved. स्वच्छता की इस मुहिम में पूरे समाज का योगदान जरूरी है। जन भागीदारी से ही कोई अभियान को सफल बनाया जा सकता है। सिक्किम के सभी धार्मिक स्थल भी इस दिशा में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। सिक्किम का ऐतिहासिक किरातेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं में स्वच्छता की अलख जगा रहा है। मंदिर परिसर को शुद्ध और साफ रखने का प्रयास जारी है। यहाँ पे जितना भी भक्त लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ पे जगह जगह पर डस्टबिन रखे हैं। हम लोग उन लोगों को बोलते हैं सब मैला कचरा है जो डस्टबिन में डाल दीजिए, और यहाँ पे बाथरूम वगैरह अच्छा है, वहाँ पे बाथरूम वगैरह में सही ढंग से लगा चलाइए और पानी की व्यवस्था कीजिए। और मंदिर का सफाई के लिए हम लोग सबको बोलते हैं, यहाँ पे कर्मचारी भी लोग हैं, इन लोग हम लोग दिन डेली हम लोग सफा के लिए बोलते हैं। और शादी वगैरह होता है, पर्व होता है, यहाँ पे मेला लगती है, उस समय में हम लोग काफ़ी सफा के लिए ध्यान देते हैं। हम लोग सबको बोलते हैं। और यहाँ हमारा एक जो हमारा समाज भी है उन लोग भी आते हैं। हम लोग मिल करके इस सफाई के लिए सबको बोलते हैं, भक्त लोग को भी। सिक्किम के मठ भी स्वच्छता की दिशा में तमाम तरह की कोशिशों में जुटे हैं। लोगों में स्वच्छता की भावना भरने की प्रार्थना करने के अलावा लोगों में स्वच्छता का संदेश भी देते हैं। ये परिणाम है
सिक्किम प्रशासन की एक पहल का, जिसके तहत यहाँ हर मठ में एक लांबा को स्वच्छता का दूत बनाया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वो लोग हमको ये जो ब्रांड एम्बेसडर हमको बनाया है, तो मेरा रोल जो है इतना तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को अवेयरनेस दे सकता हूँ। किसी को जहाँ पर लोग जमा होगा, गांव में जाएगा, जो पूजा पाठ होगा, उसी टाइम इसके बारे में मैं उन लोग को बताता हूँ कि स्वच्छ भारत क्या है, कैसा करना है। ये सब मिलके जो इसको स्वच्छ भारत को जो हम ये इसको सफल करना है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे विद्यालय के बच्चों ने स्वच्छता की मुहिम को आगे बढ़ाने में निभाई अहम भूमिका। जल्द लौटते हैं। वादा किया था मैंने वादा किया था, वादा किया था मैंने। सुरक्षा जो मिले माँ के दूध और तन की गर्मी से पहले घंटे में, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। तुझसे वादा रहा पहले घंटे की सुरक्षा का। गवाह कौन? ये गवाह जी, पूरा किया ना मैंने वादा। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? रात मैंने मुहासू वाली क्रीम लगाई थी जो आप लाए थे। लाना जरा वो क्रीम। ये लीजिए। ओह गॉड, दुकानदार ने तो मुझे एक्सपायरी डेट वाली क्रीम दे दी है। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल है ना मेरे पास। जी हाँ, आप दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में करें। जागो, ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य LED। खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। नया महिंद्रा यूवो दे 400 घंटे का लंबा सर्विस अंतराल, यानी साल में एक सर्विस की बचत। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। समाज में स्वच्छता के प्रति अप्रत्याशित बदलाव आया। ये बदलाव विद्यालयों में भी देखा गया। पश्चिमी सिक्किम के लिंगजोंग माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने नए नए तरीके इजाद किए। प्लास्टिक के कचरे, पॉलीथीन के फेंके गए डिस्पोजल से उन्होंने सुंदर सुंदर सामग्री तैयार की। प्लास्टिक के कचरे से उन्होंने सुंदर सा गेट बनाया, तो पॉलीथीन के कचरे और टायर से उन्होंने पार्क को बेहद सुंदर तरीके से सजाया है। इसमें शिक्षकों का भी योगदान रहा है। पाठ्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। बाल मन कोरे कागज की तरह है, जैसी चाहो वैसी लकीर उभर आती है। बच्चों में सीखने की ललक भी सबसे ज्यादा होती है। स्वच्छता बचपन से ही आदतों में शुमार होना जरूरी है, और कुछ इसी तरह के तरीके इजाद किए हैं पश्चिमी सिक्किम जिले के लिंगजोंग माध्यमिक विद्यालय ने। प्लास्टिक के कचरे, पॉलिथीन बैग, फेंके गए डिस्पोजल से ये बच्चे सुंदर सामग्री तैयार करने में जुटे हैं। विद्यालय के गेट भी प्लास्टिक के बनाए गए हैं। Under Swachh Bharat Abhiyan, and that is one of the things that we have done is here recycling of bottles. That both it's like plastic bottles and like glass bottles. We have like decorated all in this ponds, and you can see here the things that we have done. पहले तो इसे देखिए, हमने पहले प्लास्टिक कलेक्ट करके साफ करके और छोटे छोटे पीस में काट के इसमें डाला है, और रुई के बदले में इसमें हमें डाला है। देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और लाइट भी है, इस लो कीमत पड़ेगा और देखने में बहुत अच्छा आएगा। ये क्वेश्चन है, और इसमें भी पहले हमने प्लास्टिक कलेक्ट करके उसको काट के इसमें डाल दिया है, और बहुत लाइट भी है।
और इसमें बहुत खूबसूरत दिखता है। फेंका हुआ चार्ट पेपर है, यूज़ किया गया चार्ट पेपर है और इसका हमने कंटेनर बनाया है। इसमें हम जो कोई सामान रख सकते हैं हम। विद्यालय ने स्वच्छता की सीख बच्चों में जगाई। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। बच्चों के कदम आगे बढ़ने लगे। सहयोग शिक्षकों का भी रहा। स्कूल के पार्क में सुंदर फूल उगाए। स्वच्छ और सुंदर सिक्किम बनाने का अभियान फलने फूलने लगा। इसको हम टीचर स्टूडेंट सब मिलके ये काम करते हैं। जब स्कूल आते हैं घर से तो सब पानी आके इधर पानी डाल देते हैं इस फूल में। जो भी ये फूल इधर है उसमें पानी डाल देते हैं। वो सिर्फ हम ही नहीं करते, वो टीचर हम सब करते हैं। स्कूलों में स्वच्छता फैलाने और बच्चों को उससे जोड़ने के लिए साल 2010 से ग्रीन स्कूल कैंपेन आयोजित किया गया। असर ये हुआ कि दूसरे विद्यालय से बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ से स्वच्छता की सीख लेकर जाते हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो यहाँ पर हमारे स्कूल में विजिट करने के लिए आए, जैसे आसाम लिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो ईस्ट सिक्किम से है। जी, ईस्ट सिक्किम से बच्चे लोग आए थे। वहाँ का एसएमसी भी उनको साथ लेके आए थे और सारा ये हमारे भी क्रिएशंस को देख के ये लोग चले गए। होपफुली वहाँ भी कर रहे होंगे। ऐसे तो यहाँ पर जो मैंने पड़ोस में जो भी स्कूल है वहाँ भी थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, चल रहा है। लिंगजोंग स्वच्छ विद्यालय है। स्वास्थ्य और स्वच्छता की गोपनीयता में अव्वल है। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बने हैं। खासकर लड़कियों की स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा गया है। शौचालय में अलग से सैनिटरी किट रखे गए हैं। टॉयलेट का साफ सफाई के लिए हमारे इधर पे एक स्वीपर है, वो सब नहीं कर सकता है। स्कूल का सारा साफ तो नहीं कर सकता है। इसीलिए गर्ल्स का जो हमने उसका अलग अलग रूटीन बनाया है। अच्छा। हाँ, जब सुबह आएगा वो सब गर्ल्स उसका जो जिसका भी वो टर्न होता है वो आके वो साफ करेगा। सैनिटेशन नैपकिन के लिए गर्ल्स कभी वो उसको तो पता नहीं चलता है कि घर में वो ठीक है, लेकिन जब रास्ते में आते आते वो गर्ल्स लोगों का वो प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए वो स्कूल में जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो हमको आके बोलते हैं मैम ऐसा प्रॉब्लम है। हमने उधर पे वो सैनिटेशन नैपकिन रखा है। मेहनत को कामयाबी भी हाथ लगी है। साल 2011-14 में लिंगजोंग विद्यालय को राज्य सरकार ने ग्रीन स्कूल पुरस्कार से नवाजा है। हमारा स्कूल मतलब ग्रीन स्कूल प्रोग्राम बोल के एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हम 2010 से कर रहे हैं और ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के अंदर ग्रीन स्कूल अवार्ड भी मिला था हमारे स्कूल को। सर 2011 में स्टेट में 4th पोजीशन का अवार्ड मिला था। 4th पोजीशन अलॉन्ग विथ कैश प्राइज ऑफ ₹1 लाख। और इसके बाद में 2014 में भी हमको 1 लाख रुपीस का कैश प्राइज के साथ में ग्रीन स्कूल अवार्ड मिला है। ये तो हम ये सब एनवायरनमेंट रिलेटेड वर्क में हम कर रहे हैं। एक तो क्या है कि हमारा ये हर्बल गार्डन है, हर्बल मेडिसिन गार्डन है, वहाँ भी हम ये अमाउंट जो है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ये एनवायरनमेंट रिलेटेड ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो भी प्रोग्राम करना है वो सब में हम कर रहे हैं। विद्यालय में पानी संरक्षण के तरीके भी निकाले गए हैं। मिड डे मील के बाद बच्चे पानी बर्बाद करते थे। अब गंदा पानी फूलों के क्यारे तक पहुंचा दिया गया है। साफ पानी की बचत हो जाती है। पहले हमको हमारा घर ही अच्छा रखना होगा, तो फिर स्कूल के बाद आता है वो लोकेलिटी और स्टेज। ऐसे करके हमारा देश भी अच्छा होना चाहिए। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की ये बानगी है। छोटे बच्चों के कारीगरी से प्लास्टिक कम हो गया है। इलाके में ट्रकों के टायर से प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण ना फैले और पर्यावरण का संरक्षण हो, सॉलिड वेस्ट पार्क का निर्माण किया गया है। कचरे के निष्पादन की समुचित व्यवस्था की गई है।
विद्यालय एक मंदिर है। मंदिर की तरह विद्यालय की साफ सफाई भी जरूरी है। इस विद्यालय ने स्वच्छता की मिसाल पेश की है। छोटे छोटे बच्चों के कर्तव्य ने कई कारनामे किए हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे सिक्किम ने हासिल की स्वच्छता की कामयाबी। आप बने रहिए हमारे साथ। कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का माँ, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। ए से सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, डी से डिफेंस में भी जोश भरते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स, A to Z आपके काम आते हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। 1090 विमेन पावर लाइन, एक ऐसी योजना जिसने यूपी की मां, बहनों और बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। महिलाओं के लिए विमेन सेफ्टी ऐप भी बनाया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश की सारी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। आपको बता दें कि सिक्किम आज पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त राज्य बन चुका है। इस कामयाबी के लिए सिक्किम ने एक लंबा सफर तय किया है। सिक्किम आज स्वच्छता के मामले में देश के कई अन्य राज्यों से आगे है। स्वच्छ जिलों की दौड़ में सिक्किम के 4 जिले हैं। प्रशासन और जनता की सहभागिता ने सिक्किम को इस मकाम पर लाकर खड़ा किया है। अगर आप फुर्सत में हैं तो एक बार सिक्किम घूमने जरूर आइए। सिक्किम ने अपनी पहचान में नए आयाम गढ़े हैं। साफ सुथरी सड़कें, नो स्मोकिंग जोन, प्लास्टिक फ्री स्टेट और एक ऑर्गेनिक राज्य। 7096 वर्ग किलोमीटर तक फैले इस छोटे से राज्य ने आज वो कर दिखाया है जो बड़े से बड़े राज्य के लिए भी एक मिसाल है। सिक्किम ने पूर्ण स्वच्छ राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। लोगों की विकासवादी सोच और राज्य सरकार के कुछ कर गुजरने की ललक ने एक ऐसा सामंजस्य बिठाया कि आज राज्य का हर तबका सम्मानित महसूस कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में सिक्किम को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छता के मूल्यांकन के लिए कराए गए सर्वेक्षण में देश के 26 राज्यों को शामिल किया था। पैमाने पर 10 जिले खरे उतरे। इनमें से सिक्किम के 4 जिलों ने बाजी मारी। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2016 के अनुसार सिक्किम को प्रत्येक घर में शौचालय होने पर 100 में से 98.2 अंक प्राप्त हुए और वो अव्वल रहा। सिक्किम को पारिवारिक सामुदायिक शौचालय के उपयोग के मामले में 100% अंक दिए गए। इसमें पश्चिमी सिक्किम जिले को 96.4 अंक, पूर्वी सिक्किम जिले को 93.7 अंक, दक्षिणी जिले को 93 अंक और उत्तरी जिले को 90.7 अंक प्राप्त हुए हैं। तकरीबन 1 दशक पहले प्रयास शुरू हुए। सरकार ने मिशन मोड पर काम करना शुरू किया। बात लोगों की समझ में आ गई। एक एक कर कड़ियां जोड़ती चली गई और देखते ही देखते हर घर शौचालय युक्त हो गया। पहाड़ी इलाका, जंगली जानवरों का भय और रात में शौच जाने की समस्या, ये सब अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। सिक्किम में खुले में शौच करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे यहाँ शौचालय का निर्माण किया गया है। इसे बनाने के लिए सरकार से हमें 12,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती थी, पर अब शौचालय बनने से बहुत आराम है। स्थानीय नागरिकों की भागीदारी काबिले तारीफ है। लोग कूड़ा कूड़ेदान में ही डालते हैं। प्रशासन ने भी अपनी मुस्तैदी दिखाई है। इन गाड़ियों में भरकर कूड़ा रिसाइकिल होने के लिए हर सुबह निकल पड़ता है। जी, हम लोग यहाँ जितना पब्लिक है और टैक्सी ड्राइवर सब मिल करके साफ करते हैं, और गाड़ी में भी बैग रखा हुआ है, ये डस्टबिन दिया हुआ है पंचायत की तरफ से। इसमें और प्लास्टिक और दूसरा आइटम कूड़े वाला आइटम दोनों मिला के हम लोग उधर डस्टबिन में डालते हैं। ये डेली हम लोग का ऐसा हो गया कि रूटीन जैसा हो गया कि ताकि हमको ऐसे बाहर में देखने में कुछ साफ देखने में अच्छा लगता है, तो डेली हम लोग ऐसे साफ करते हैं। और पार्टिसिपेंट पंचायत लोग भी बहुत देते हैं हम लोग को। ये कामयाबी इतनी आसान नहीं थी। तकरीबन 1 दशक की मेहनत आज रंग लाती दिख रही है और आगे भी लगातार प्रयास जारी रखने होंगे, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ ही शौचालय का निर्माण करना भी एक बड़ी चुनौती है। इसी के साथ स्वच्छता के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन हमारा ये अंक आगे भी जारी रहेगा। आप डीडी न्यूज की खास मुहिम #स्वच्छ बनाएं भारत से सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD News Live को फॉलो भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।